గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరికి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ భయ్యా. ఇక్కడ పైన ఒక ఫోటో పెట్టా, ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. నిన్న మీకు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా షేర్ చేస్తున్నారంటే, సండే రోజు పోర్టల్లో రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని చూపించుకుంటూ దీన్ని ఇట్లా చేస్తున్నారు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు చూసుకొని ఇక్కడ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత షేర్ చేస్తున్నారు అనేది. సో ఒకవేళ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుంటే మరి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి. నిన్న 3 వీలర్లో 640 ఉంది, అదే మూవర్లో 562 ఉంది అన్నారు. అదే రేటు ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇది మూవర్లో ఇవాళ చెక్ చేస్తే అలానే ఉంది రేటు. ఏదైతే మీరు రేట్స్ ఉన్నాయో మీరు అది చూసుకోవచ్చు, 562 అలానే ఉంది. బట్ పోర్టర్లో రేటు పడిపోయింది. సో ఇది పోర్టర్లో రేటు పడిపోయిందంటారా లేదా ఆ రోజు సర్జ్ ఉందని చెప్తారా? సో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే పోర్టర్లో రేటు పడిపోలేదు, అది ఎప్పటి నుంచో పోర్టర్లో సర్జ్ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే రేట్ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూపించుకొని రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేస్తారు. అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ వీళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తున్నారా ఏమి ఇస్తారో అర్థం అవ్వట్లేదు అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసినందుకు. సో ఆలోచించుకోండి, ఓకేనా? సో ఎవరైతే అలిగేషన్స్ పెడతారో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది వీళ్ళు ఎంత ఇగ్నోరెన్సా లేకపోతే వీళ్ళ దాంట్లో ఉన్న మెంటాలిటీ ఏందో మీకు అర్థమవుతుంది, వీళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది. సో ఎవరితో ఆడుకుంటారో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. సో స్క్రీన్ షాట్స్ నిన్న సమాధానం చెప్పిన నిన్న కమిషన్ పోయినాక ఎంత వస్తుంది అదే ఇప్పుడు చూడండి. ఇంకా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కమిషన్ డ్రైవర్స్ కి అదే డబ్బులు వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ పోర్టర్లో 8 ఫీట్ రేట్ చూడండి 690 ఉంది. 690 నిన్న ఎంత ఉండే ఇవాళ ఎంత ఉండే 690 ఏదైతుందో నిన్నటి రేటు ఇవాళ రేట్ చెక్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క రేట్ చెక్ చేసుకోండి. మీకు కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్స్ నేను మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా పెడతా. ఇవి చూసుకొని ఎక్కడ లాభం నడుస్తుంది ఎక్కడ నష్టం జరుగుతుందో చూసుకోండి. దీన్ని ఎవరు ప్రమోట్ చేస్తున్నారో దీన్ని ఏది చేస్తున్నారో చూడండి. ఒకవేళ సరే మూవర్ కంపెనీ నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నా అంటే ఇదే పోర్టర్ కంపెనీని 1 year నేను ప్రమోట్ చేసిన. సో మరి అప్పుడు దాని సంగతి చెప్పండి. అప్పుడు ఎందుకు చెప్పినా, ఎందుకంటే అప్పుడు మార్కెట్ లో అది ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సపోర్ట్ చేసిన. ఎందుకంటే డ్రైవర్స్ కి అక్కడ లాభం జరగాలనే ఉద్దేశంతో. సో అంతేగాని ఇక్కడ ఎవరు నాకు లాభం కాదు, డ్రైవర్స్ కి లాభం లేదు. సో అలాగే మీరు చూడండి ఇప్పుడు కమిషన్ పోయినాక ఎంత మిగులుతుందో చూడండి, అండ్ ఏ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి, మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ ఎవరు చేస్తున్నారో చూడండి, ఇవన్నీ ఆలోచించండి. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते भाई। ये जो आप रिकॉर्डिंग सुने, ये रिकॉर्डिंग में कौन है आप सबको मालूम है। आवाज सुन के आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, लेकिन ये जो बंदा है ये मूवर कंपनी का ओनर नहीं होता, ना ही मूवर कंपनी का जो अपना हेड ऑफिस से कोई भी मेरे को फोन करा, ना मैसेज करा, ना कांटेक्ट करा। ये बंदा अपने हैदराबाद में रहने वाला है। ये बंदा भी एक नॉर्मल सा ड्राइवर है, लेकिन आप सब लोगों को नहीं मालूम कि ये बंदा कौन है। आप आवाज सुने होंगे ना, आवाज के हिसाब से आप अंदाजा लगा लो ये बंदा कौन है। ये बंदा जो रिकॉर्डिंग में बोला मैं गलत बताया और जो है मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं बोल के बोल रहा। देखो भाई, अगर मैं गलत बताता था तो फिर मैं ये वीडियो बना के आप सबके सामने नहीं आता था। आप ही जो है ये चीज का अंदाजा लगा लो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी जो ये फोटो आपको दिख रही, ये फोटो देखो, ये आज की फोटो है 562 रुपीज की। ये जो फोटो है ये आपको मूवर कंपनी की दिख रही होंगी, लेकिन जो 560 रुपीज की ये फोटो है, ये फोटो में आपको पोर्टर कंपनी का दिख रहा। इन दोनों में रेट कितना है? सिर्फ 2 रुपए का है। तो मैं यही चीज कल बताया था। ये फोटो में भी 3 व्हीलर की गाड़ी का ही आपको अमाउंट बता रहा हूँ, और कल जो बताया था वो भी 3 व्हीलर की गाड़ी का था। देखो भाई, ये बंदा ये रिकॉर्डिंग में और एक बात क्या बोला, कल संडे था, सर्ज अप्लाई होता, यानी कि संडे के दिन पोर्टर कंपनी में अमाउंट ज्यादा होता बोला। तो वो जो अमाउंट ज्यादा हुआ, मानता हूं मैं, सर्ज अप्लाई हुआ, अमाउंट ज्यादा हुआ, सिर्फ 80 रुपए ज्यादा हुआ। तो आज आप जो अमाउंट अभी फोटो देखे, वो अमाउंट में आप भी चेक कर लो, पंजागुट्टा मेट्रो से लेके मियापुर मेट्रो तक दोनों में भी सिर्फ 2 रुपए का फर्क आ रहा। 560 पोर्टर में आ रहा, 562 रुपए मूवर में आ रहा। मैं कोई भी चीज गलत नहीं बता रहा हूं भाई। ये जो बंदा मेरे को रिप्लाई दिया कल रात में, मैं वीडियो अपलोड करने के थोड़ी ही देर के बाद मेरे को कमेंट करा ये बंदा। मैं जब ही समझ गया बंदे को। वो कमेंट की फोटो ये है, ये फोटो को देखो आप, इसमें उन्होंने नोट दे रहे मेरे को। नोट देके फिर और एक फोटो है, वो फोटो की वो जो फोटो है ये है। तो ये फोटो को भी देखो आप, इसमें इन्होंने मेरे को बता रहे कि 562 में और पोर्टर में मूवर में कितना पैसा बता रहा। तो इनको जो है तकलीफ हो गई। आप लोगों को जो मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, मेरा बोलने का मकसद ये है कि भाई ये बंदा अपनी दुकान चला रहा, ये बंदे को मैं हाईलाइट करना था, इस वजह से मैं ये वीडियो बनाया। कल वाला भी वीडियो बनाया, आज वाला भी वीडियो बनाया। ये बंदा मार्केट में कैसा आया मालूम है, एक ड्राइवर बन के सबके सामने अपने आप को एक गरीब मजलूम ड्राइवर बोल के आया। दूसरे ड्राइवरों की जो है तकलीफ समझता हूँ मैं, दूसरे ड्राइवरों को साथ देता हूँ।
दूसरे ड्राइवरों को जो है ना सबको इकट्ठा करके यूनिटी बना के यूनियन बना के सब ड्राइवरों का जो है अच्छा करूंगा, सबका फायदा करूंगा बोल के ये बंदा आया। फिर इनको जो है थोड़े दिन के बाद ये ख्याल आया कि भाई हम सिर्फ बोलने से नहीं होता, एक काम करेंगे, हम ग्रुप बना लेंगे। मैं थोड़े लोगों से मिलता हूँ, आप थोड़े लोगों से मिलो। तो ये बंदा रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे लोगों के घरों पे आना, सबको फोन करके आना, कभी कभी बिना फोन कर लेके आना, आके जो है ना उनसे मिलना, मुलाकात करना। कल कोई एक समझो अगर कोई कल प्रोग्राम करना है तो रात इनको हाईलाइट कर देते कि भाई ऐसा कल करना है, देखो किसको भी नको बोलो, इनको बोल देते। अब समझो एक कोई बंदा है, उसको बोल दिया समझो कल भाई आज अपने को कोई प्रोग्राम करना है धरना चौक पे, एक काम करो आप कल ये टाइम पे मिलेंगे, किसको भी नको बोलो, सिर्फ मैं आपको बोला बोलते। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे जने के जाते रात में, जब भी जाते जाके फिर मिल के उनको भी यही बोलते कि भाई कल धरना चौक पे काम करना है, अपने को प्रोग्राम करना है, किसको भी नको बोलते। यही बोल के जो है ना लोगों का जो है भरोसा जीते। फिर भी लोग क्या करें, इनके ऊपर भरोसा करे, अरे भाई हमारे साथ वाला ड्राइवर है, काम का ड्राइवर है, चलो हमारी कुछ मदद कर रहा है बोल के। उसके बाद क्या करे इन्होंने, अपनी दुकान चलाना शुरू करके उसके बाद करे क्या, ग्रुप तो बन गया, लोग तो जुड़ गए। अब उन्होंने प्रोग्राम क्या लाए, हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे बोल, खुद का ड्राइवर का ऐप। तो इन्होंने कोई बंजारा हिल्स की या जुबली हिल्स की कोई ऑफिस है, वहां पे जाके जो एप्लीकेशन बनाते ना उनसे जाके बात करें 1 से 2 बार, अपना ऐप लॉन्च करेंगे बोल के बोले। ड्राइवरों को जो बेस फेयर मिल रहा, पर किलोमीटर मिल रहा, वो चीज पे बात करेंगे, वो चीज पे आवाज उठाएंगे। इनकी फाइट थी पोर्टर कंपनी के साथ, हकीकत में इन्हों आए थे पोर्टर कंपनी से फाइट करने के लिए, लेकिन आज इन्हों मूवर कंपनी की तरफ से जवाब दे रहे मेरे को। कहीं को दे रहे भाई, ये चीज जो इनको जवाब देना है ये कंपनी वाले मेरे को देना था, चाहे तो वो लोग मेरे को केस करना था, लेकिन कंपनी वाले केस नहीं कर रहे, कंपनी वाले जवाब नहीं दे रहे। जवाब कौन दे रहे, ये भाई साहब दे रहे। ये भाई साहब है मूवर कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉय, हैदराबाद में रहते हैं और मूवर कंपनी का पूरा हैदराबाद का फ्रेंचाइज इनके पास ही है। तो आप सब ड्राइवर भाइयों को मैं ये समझाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए मैं जो है वीडियो बनाया। भाई मैं गलत नहीं बताया, कल भी नहीं बताया, आज भी नहीं बता रहा हूँ, जो बताना है मैं सच ही बता रहा हूँ। क्योंकि कल सर्च अप्लाई हुआ था, मैं ये चीज को मानता हूँ, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, आप भी बेवकूफ नहीं है। आप सबको भी मालूम है पोर्टर कंपनी में संडे को संडे या फिर वीकेंड्स में पैसे बढ़ते, ऐसा नहीं कि हमारे 400-500 बढ़ते, बल्कि 70-80 रुपए 100 रुपए बढ़ते, उससे ज्यादा नहीं बढ़ते। लेकिन भाई साहब क्या करे, देखो मूवर कंपनी की तरफ से मेरे को जवाब दे रहे। तो इसमें आप लोगों को सोचना है असल यहाँ पे गलती में कौन है, गलत कौन है। अब ये मेरी जो बात है ना, इसके बाद में और एक रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ। वो रिकॉर्डिंग में दूसरे भाई साहब से भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत से रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ, और एक खास अहम शख्सियत से आप सबको मिलाने वाला हूँ। यहां से अब समझो उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है भाई साहब का। आप लोगों को अब तो अकल आना, ये बंदा ड्राइवरों का भला बोल के, ड्राइवरों का साथ देता हूँ बोल के, ये बंदा जो है ना अपनी दुकान चला रहा मूवर कंपनी में आके। मूवर कंपनी वाले ओनर को ये बात मालूम है नहीं है, पता नहीं। अगर आप मूवर कंपनी वालों को मेरी बात मालूम है तो मेरे को जो है कांटेक्ट करो आप, मैं आपको समझाता हूँ बंदा कौन है, क्या कर रहा। और भी बहुत से लोगों को, ड्राइवर भाइयों को जो है ना ये चीज पर्सनल दिख रही। अगर आप लोगों को पर्सनल दिख रही ना भाई, समझ जाओ पर्सनल ही है। लेकिन हम जो भी है, हम सब मिलके ड्राइवर भाइयों के अच्छे के लिए बोल रहे। आज अगर हम ये बंदे को नहीं रोके तो ये बंदा आगे चल के मार्केट को पूरा बर्बाद करने वाला है। कौन बंदा है, बंदे का नाम नहीं लेता मैं, वो बंदा है ऑथोराइज पोर्टर कंपनी का ऑथोराइज एम्प्लॉय। अब आप आवाज से पहचान लो, क्योंकि मैं आइडेंटिटी नहीं बोल सकता। मैं आइडेंटिटी बोला तो ये भाई साहब को फिर मौका मिल जाता, समझ रहे। और डरने वाला तो नहीं हूं, आप क्या कर सकते कर लो भाई साहब। लेकिन आप जो मूवर कंपनी की तरफ से जवाब दे रहे, वो आगे चल के वो रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अपनी दुकान चला के। यहाँ से आपका बुरा वक्त शुरू हो गया समझो। अब वो खास सक्सेस से भी मिलाने वाला हूँ आपको। पहले आप ये रिकॉर्डिंग भी सुनो, क्या क्या है रिकॉर्डिंग, मैं आपको बोलता हूँ क्या है। तो देखिए भाई, असल बोलने का मकसद क्या है मेरा, अपना जो मूवर कंपनी का ऑथोराइज एम्प्लॉय है, इन्होंने 200 रुपए एक्स्ट्रा रख के जो है पोर्टर मूवर कंपनी में काम करे नो। सब ड्राइवर भाई जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे कि मूवर कंपनी में 200 रुपए ज्यादा है पोर्टर कंपनी से। तो अभी इन्हों क्या करे, 200 रुपए कम कर दिए। तो अभी इन्हों क्या बोल रहे हैं मेरे को साफ साफ कि हम पोर्टर के बरोबर आए। तो कहीं को आए भाई, अगर आप करना था तो आप 200 रुपए ज्यादा रख के जो है ना फाइट करना था। ठीक है, चलो इन्हों तो मेरे को फ्रॉड बोल रहे, मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बोल रहे, लेकिन मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, सच दे रहा हूँ आपको। और एक सच बताने वाला हूँ, मैं जो बोला था आपको
हमारे एक भाई से मिलाने वाला हूँ मिल के, वो भाई की वो यहाँ पे आप बता दो भाई कौन है। मैं आपको इससे पहले बोला था कि एक भाई साहब से मिलाने वाला हूँ मिल के, तो आप देखिए उनको, उन्होंने बोलते आपको सब हकीकत क्या है। यहाँ से समझो जो तुम है, क्या नाम अपना, रवि रेड्डी, तुम्हारा यहाँ से बुरा वक्त शुरू हो गया समझो। अब बच जाओ, जो भी गलत काम करना है, क्या करना है अब तक कर लिए, अब यहाँ से तुम नहीं कर सकते। देखो अभी हमारे भाई साहब से मिला रहा हूँ, मिलिए। इनका नाम है शेख फैयाज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना आप लोगों के लिए आदाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना आप लोगों के लिए आदाब। जी बोलिए सर। भाई अपने जो रवि रेड्डी साहब है जी उनसे मैं बहुत दिन से जो है ना वीडियो आ रहा था उनके ऊपर। जी तो भाई साहब क्या करे, थोड़े दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, वो वीडियो में बोला मैं बहुत से लोग जो निकले जी वो लोगों का जो हिसाब किताब कहाँ है, किधर है, बोला। जी तो उन्होंने आज मेरे को मजबूर कर दिए। जी तो उसके अलावा भी आज अपने को मुलाकात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका जो है ना, मैं जी बहुत दिन से नाम सुना भी था, जी बहुत दिन से, मैं अभी से नहीं, बेस्ट ड्राइवर यूनियन के टाइम से हूँ, जी जब से मैं आपका नाम सुना। तो मैं इससे पहले बोला था, मैं जो अपने लोगों से मिलाता हूँ, वो लोगों को जिस को धोखा दिए नो, जो लोग मेहनत करे, मेहनत करने के बाद भी जो आज काम खराब कर दिए नो, तो वो हिसाब से मैं आपको मिलाया। तो आपका नाम शेख फैयाज हुसैन है। शेख फैयाज हुसैन है मेरा नाम। जी, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं मूवर के बारे में? क्योंकि मूवर कंपनी का कल वीडियो डाला था मैं। जी जी तो हमारे जो मूवर कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉय है ना, जी। उनका क्या कहना है, मैं गलत चीज बताया, ले लो। मैं गलत बात बोला, और अमाउंट ज्यादा नहीं है, कहते कम कर दिए मूवर वाले, लेकिन उनका बोलने का क्या है, हम कम नहीं करे, पोर्टर वाला कम करा। देखिए, आप दोनों चीज़ों पे मेरी नज़र है, फिर इसके ऊपर बाद में गुफ्तगू करूंगा। मैं सबसे पहले अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का मैं ये शुक्र अदा करूंगा कि आपकी मुलाकात आज मेरे से हुई। जी मैं कई सालों से आपके इंतज़ार में था ताकि मैं भी इस काबिल बनूं, शायद अगर कुछ आइडिया आप मेरे को दिए तो मैं भी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से ये बंद कमरों के अंदर लड़ाई बहुत हो गई। अब से नहीं, तकरीबन 7-8 साल से हमें हमारी यूनियन होना, जी एक हमारी यूनियन होना बोल के हमें कर लेते आ रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमसे अगर कोई काबिलमंद इंसान हो तो वो हमारे आगे आए, ताकि अपनी यूनियन को जो है एक प्लेटफॉर्म दे। तो उसमें हुआ यूँ, अब जो बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे हमारे रवि रेड्डी साहब है, अगर इनके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये पहले तो ग्राउंड लेवल पे मेरे पास आए, और एक अपने नरेश अन्ना बोल के उनके पास आए। ठीक है, कोई इनको बताया कि भाई ये दोनों लोगों से आप मिलो तो हिम्मत आपको मिलती, मतलब आगे आप बढ़ सकते। तो मैं बोला भाई, हाथ जोड़ के बोला कि भाई देखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट इस वजह से करता हूँ कि मैं ड्राइवरों से तंग हो गया। अपने ड्राइवर एक होने वाले नहीं है। जी जितने ऑनलाइन कंपनी आए, जितने ऑनलाइन कंपनी, ये सिवाय ड्राइवर पे जुल्म करने के और कुछ नहीं करे। जी सिर्फ कस्टमर के फेवर में बात हुई, ड्राइवर कस्टमरों के मार खाया, ये अभी तक हो लेते भी आ रहा, ये तमाम तरीके की चीजें। तो ये साहब आश्वासन दिए कि भाई क्या बोलते हैं, नहीं अपन एक काम करेंगे, ऐसा करेंगे, मैं लंदन से डिग्री लेके आया, फला लेके आया, जो भी लेके आया, ठीक है चलो बोले। उसके बाद क्या करे, कदम आगे बढ़े। तो इन्होंने मुद्दा क्या लेके आए भाई, अपना एक यूनियन होना, अपनी एक यूनिटी रहना, उसके ऊपर काम हुआ। काम होने के बाद क्या करे साहब, थोड़ा सा एक 11 लोगों का एक एडमिन ग्रुप था। एडमिन तो खैर मैं बोल रहा हूँ, उसके अंदर डिसाइड ये करे थे, जितने लोग हैं इस ग्रुप में कोई एडमिन नहीं है, ठीक है, सबके ख्यालात एक जैसे होना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। और वो ग्रुप का सबसे पहला मसला ये था कि भाई ग्रुप से किसी की रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की जाएंगी, ग्रुप से किसी को रिमूव नहीं किया जाएगा, अगर किसी को जाना है तो चले जाओ। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो हैदराबाद के अंदर जितने मेरे पास ग्रुप थे, 7-8 ग्रुप या उससे ज्यादा मैं कहूँ तो, पूरे ग्रुपों में हाईलाइट कर दिया जब इनका पर्दाफाश हुआ। जब इनसे मैं सवाल करा, बात यहाँ तक आ गई थी कि भाई अपना ऐप लॉन्च करेंगे। ठीक है, अपना ऐप लॉन्च करने के लिए एक एक ड्राइवर को 5-5 हज़ार रुपये डालना है। तो बोले भाई अगर कोशिश करेंगे, मगर ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ क्या है? हम जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, ये पैसा जो कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर अपन एक अग्रीमेंट करेंगे कि भाई हम ये ड्राइवर के पास पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद उसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो ये सब अग्रीमेंट से भाग रहे थे। ठीक है, कई का अग्रीमेंट करूँ, कई का अग्रीमेंट करूँ। तो हम एक ही बात बोले, भाई अगर जो भी ऐप आएगा मार्केट में रन कैसा करेंगे, उसमें अपना पर किलोमीटर होना चाहिए, उसमें अपने हर गाड़ी का बेस फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये साहब ये बोलने लगे कि हर चीज़ की क्लियरिटी देता हूँ, आ जाओ इंदिरा पार्क धरना चौक हैदराबाद के अंदर है। वहाँ पे बुलाए, बुलाने के बाद जब सवाल उठा तो ये साहब क्या बताए, बोले तो भाई मेरा ऐप है क्या? अब वहाँ कौन से ड्राइवरों को लेके आए या उनके फेवर में थे, क्योंकि रातें रात फिरते थे।
उसके प्रूफ भी मैं एक एक प्रूफ देता हूँ आपको, एक एक प्रूफ देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये साहब जो है रातें रात आते थे, रातें रात आते थे, रातें रात आके सबसे पर्सनल मिलते थे, सबको पर्सनल, तुम मेरे खास आदमी है, ठीक है, अपने में रहना बात, सबके पास जाते थे, एक ही बात बताते थे कि आप मेरे खास है। भाई धीरे धीरे एक ना एक दिन तो लीक होंगी बात, सबको अपना खास बना लिया। उसके बाद जब मीटिंग अरेंज करे तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 1300 से 1400 आदमी आए, ठीक है। और खाने के अंदर भी घोटाला हुआ, खैर मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, वो जो भी है खैर बात की बात है। अभी तक वो पैसों का हिसाब भी नहीं मिला। अगर मैं बोल लेता बैठूँ तो मेरे को 10 घंटे दे दे तो कम है, सीधी सी बात है भैया, क्योंकि एक एक जर्रे पे मेरी नज़र है। और इन्होंने जिस तरीके से फ्रॉड करे ये नाकाबिले बर्दाश्त, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बता के आए कि भाई हमारी यूनियन होना, उसके बाद क्या करे, पैसा इकट्ठा करे ड्राइवरों को गाइड करने के लिए, एक फंक्शन हॉल बुक करे, उसमें पैसा लगा सब ड्राइवरों का। भाई जब मेरा भी लगा तो मेरे को अधिकार है ना सवाल करने का। इनकी मैं एक रिकॉर्डिंग सुना था, इन्होंने अपने ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं उसके अंदर कि भाई अगर कोई पॉलिटिशियन को अगर कोई पैसा लेके वोट देता तो उन्हें सवाल नहीं कर सकता कि काम कई को हो कई को नहीं हो रहा, और जो बगैर पैसे के वोट देता उसके पास पूरे अधिकार रहते। तो भाई हम भी पैसा लगाए हमारी यूनियन बनना बोल के, तो क्या हमारे अधिकार नहीं है आवाज़ उठाने के? बोलो। तो ये चीज़ें तकलीफ देने वाली है। सबसे पहले इनका बैकग्राउंड समझ लो मेरे भाई। ये जो हैदराबाद के अंदर अभी जो मूवर की बात करे, जबकि जवाब इनको नहीं देना चाहिए था। ये जो भाई है मुजफ्फर भाई, जो मजबूरी में यूट्यूबर बने ना, यूट्यूबर ये नहीं, यूट्यूबर नहीं है ना, ये टाटा इसके ड्राइवर है, टाटा इसके नॉर्मल आप जैसे हम जैसे ड्राइवर है, और इनको यूट्यूबर बना दिए, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। ना मैं पोर्टर के खिलाफ, ना मैं मूवर के खिलाफ, ना ट्रक किसी के खिलाफ, ना अंकुल डिलीवरी के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ जो इनकी पॉलिसी है ड्राइवर को नीचा दिखाने की, ड्राइवर से हेल्पर कराने की, ड्राइवर से लेबर कराने की, कस्टमर की मनमानी चलाने की, कस्टमर अपनी मनमानी चला, इनकी पॉलिसी के मैं खिलाफ। ड्राइवर को सस्पेंड करना पोर्टर ऑफिस में, उनके 5-5 हज़ार रुपये पैसे खाना, मैं उसके भी खिलाफ, मैं इनके भी खिलाफ। तो कल की एक वीडियो पे लोग एक रिकॉर्डिंग दी है कि कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे, ठीक है, एलिगेशन इनके ऊपर लगा रहे कि अमाउंट कम था। तो वो वीडियो में भाई की आप देखे थे होंगे, जो कल के दिन शायद कुछ रिलीज हुई हो, तो उसके अंदर आप देखेंगे खुली किताब इन्होंने अपने हाथ से लिख के नहीं दिए। मूवर के अंदर जितना बता रहा बुक करके वो भी बता दिया, पोर्टर में कितना बता रहा वो भी बता दिए। उसके बावजूद एलिगेशन बोल रहे। एलिगेशन कैसा होता है भाई? बोलो भाई, पोर्टर सर्च है, ठीक है, तो आप तो ड्राइवर की बेहतरी के लिए उतरे थे ना भाई, फिर ऑनलाइन की बात कहीं क्यों कर रहे हैं आप एक मूवर सपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं आप किससे एडवाइस लिए? कौन से यूनियन से? आप ड्राइवरों की यूनियन बना के क्या उनसे परमिशन लिया आप कि भाई हम ऐसा करेंगे, आपका पर किलोमीटर रहेगा, 3 व्हीलर को ये मिलेगा, टाटा इसको ये मिलेगा, 407 हो, अशोक लीलैंड हो, जो भी गाड़ी हो, उनका बेस फेयर पर किलोमीटर के आप ड्राइवर के सामने रखे, क्या इस पर काम होगा, पहले आपसे एग्रीमेंट होगा, उसके बाद में मैं कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, आपको बनो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमाना है, नोट कमाओ, मगर ड्राइवर को बेवकूफ़ क्यों बना रहे यूनियन के नाम पे? कौन बना रहे बेवकूफ? रवि रेड्डी। एक ग्रुप था जिसको डिस्कस ग्रुप हम बोलते थे, तो ज़रूरत जब इनको पड़ी तो इन्होंने आवाज़ उठाई कि एक ग्रुप बनाना, तो नरेश अन्ना ग्रुप क्रेडिट करे, 11 आदमी का ग्रुप क्रेडिट करे। उसमें एक रमेश अन्ना थे, उसमें मैं था, एक नरेश अन्ना थे, सिराज भाई थे, और हमारे इसाक भाई थे। लफ्ज़ 11 मेंबर थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं भी वीडियो पे, मैं कैमरे पे कभी इतना बोला नहीं करता, थोड़ा सा कंफ्यूज है। जितने भी नाम लिया, बाकी हैदराबाद के जो ड्राइवर है, जो ऑनलाइन के गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि कौन थे। जब इनसे सवाल करे कि भाई जैसा मीटिंग होती है उन्होंने अपना रुख बदल लिए कि भाई तुम सवाल नहीं कर रहे, रातें रात निकल के जाम बोले वहाँ जाके सबके कान में एक ही बात बोल रहे, तुम मेरे खास, तुम मेरे खास। अरे अच्छी बात है भाई, सबको खास बनाओ, उसके लिए तो हम काम कर रहे हैं, मगर सबको बंद कमरे में लग जाके तुम मेरे खास बोल रहे हैं, उनका दिल जीत ले रहे हैं, उनसे काम निकाल ले रहे हैं, पर यानी डिटेल कुछ भी नहीं दे रहे। जब उनसे सवाल जवाब करे तो ग्रुप से रिमूव, भाई तुम यूनिटी तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इन्हों क्या काम करे? आज इन्हों क्या काम करे? मूवर को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हों कितना पैसा खाए मूवर से, और ये बेचारों के ऊपर इल्जाम ये लगा रहे हैं कि पोर्टर से पैसा खाए होंगे। भाई आप बोल सकते हैं, जब एक तरफा अगर बोले तो पोर्टर के अंदर जो गलती है वो भी बता रहे हैं, मूवर के अंदर होंदो जाने जो कंपनी रहने दो भाई, बंदा थाम के बैठे हुआ है कि जो गलत करेंगे मैं उसके पीछे लगे, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ, बन जाओ जितने दुश्मन मेरे बनना है, ठीक है बड़े भाई, मैं भी खुल के बोल रहा हूँ, जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ मैं भी पिछले 7-8 साल से उठाते आया और अभी भी उठाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो फयाज भाई बोलने का मतलब, तो ये जो बंदा रवि रेड्डी है जी,
अभी मूवर कंपनी का ऑथोराइज एम्प्लॉय है, समझ रहे आप? जी, हमारे लिए तो भैया हमारे यूनियन का एक लीडर बोल के आया था बंदा वो। अब वो कौन सी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो क्या है, उसकी मेरे को मालूमात नहीं है, क्योंकि ग्रुप से बंदा मेरे को रिमूव करा से। तो नहीं फयाज भाई, मैं कल वीडियो बनाया जी तो वीडियो में मैं क्या बोला साफ साफ कि भाई कल संडे था, जी सबको मालूम है संडे के दिन पोर्टर कंपनी में पैसे ज्यादा रहते, जी। ज्यादा भी कितने रहते, 180 रुपए बहुत हो गया। सर वो जो भी होगा भाई, जो था वही डाले थे ना। वही जो तो एलिगेशन बताया, कैसा होता है? जो बताया मैं वही डाला। एलिगेशन कैसा होता तो इनो भाई साहब क्या करे, वो चीज का जवाब दे रहे कि जी। भाई कल सर्च था, कल जी। पोर्टर में अमाउंट ज्यादा था, हमारा जी। मूवर कंपनी का अमाउंट कम नहीं हुआ बोल रहे। इन्हें तो यूनिटी बताने आए थे ना, पहले उस पर बात नहीं करेंगे भाई अपन, क्योंकि उस पर बात करना बेकार। अगर मूवर का अथॉरिटी एम्प्लॉय जो बोलता था हाँ। तो वो चीज को मैं एक्सेप्ट करता था। इनको तो मैं जो है अपने लीडर के तौर पे देखा था मैंने, समझ रहे आप? एक हमारा लीडर आने वाला है, ये हमारे लिए करेगा क्या, इसके ऊपर भरपूर नजर थी मेरी। इन्होंं जब गलत जाना शुरू करे तो उनसे सवाल करते जो ग्रुप में कॉन्सेप्ट था कि हमारे ग्रुप से कभी रिमूव नहीं किया जाएगा, सवाल करने का सबको अधिकार है, तो वो अधिकार हमसे छीने क्यों है? खाली मेरा एक का मसला नहीं है बड़े भाई, तरह तरह के एलिगेशन लगा दिए, हिंदू मुसलमान करने के एलिगेशन लगा दिए। तो ग्रुप में जवाब इसकी आवाज नहीं उठाना बोल रहे, क्या होता है? रवि रेड्डी ऐसी बोल रहे थे, पर्सनल फोन करो बोला। पर्सनल क्या करते भाई, जब ड्राइवर सब मिलके ग्रुप में काम कर रहे हैं हाँ। तो ग्रुप में ही बोलेंगे ना। सुनना ना भाई, इन्हों सबको पर्सनल आके थोड़ी बोले, घर का रिश्ता थोड़ी था, सब जने ड्राइवर थे बाहर की लाइन में, सब जने मिलके ग्रुप में बात करेंगे ना। इन्हों जो बोलना है ग्रुप के अंदर सुनाते हैं सबको। हाँ। अगर अपने को कुछ डाउट है, कुछ सवाल करना है, जो भी स्कीम बनाए उसके ऊपर जरा भी डाउट है तो सबको पता चला ना भाई, यूनियन सबकी है ड्राइवरों की। हाँ, तो इन्हों नहीं बोलते पर्सनल कॉल करो बोलते, उसके बाद बोलते अगर यूनिटी अगर आपको तोड़ना है तो ग्रुप से आप निकल जाना, तो मजबूरी में मैं निकाल दूंगा। एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको डालता हूँ रिकॉर्डिंग। तो अच्छा, वो रिकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं आप जी, बालराज की रिकॉर्डिंग जी। तो भाई आप जो रिकॉर्डिंग फयाज भाई मेरे को भेजे, वो रिकॉर्डिंग आप सुनो। बालराज बोल के एक बंदा है, उसके वो बंदा ग्रुप में बात सबके साथ यही हुआ सो है। वही वो बंदा ग्रुप में बात करा, बात करने के बाद भी जो है ना, ये सवाल ये जो अभी बात बोले फयाज भाई, यही बात बोले कि ग्रुप में सबके सामने बात होना। तो ये बंदा भी क्या करा, ग्रुप में सबके सामने डाला मैसेज, बोलते कि इन्हों क्या करे, रवि रेड्डी साहब उसको निकाल दिए, बंदे को पूछ रहे साफ साफ कि तुम निकलते या मैं निकालो। तो वो रिकॉर्डिंग ये है, सुनो आप। और एक चीज मैं आपको बता दूं बड़े भाई, मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस के लिए गाड़ी लिया था मैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए बिजनेस के लिए गाड़ी लिया, ड्राइवर को लगाया, समझ में नहीं आया, गाड़ी पड़ी हुई थी, कभी मैं भी लेके निकल जाता हूँ। वैसे तो मेरा काम जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, मगर मैं चलाने के बाद ड्राइवरों की जो स्थिति देखा मैं, आज बेचारों के पास इंश्योरेंस बनाने पैसे नहीं है, आज गाड़ी के टायर डालने पैसे नहीं है। इन्हों वो इस दर्द लेके आते, आज इनका दर्द किधर गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो सवाल करा उसको रिमूव, कंपनी कौन से सिस्टम पे रन करेंगी बोल के पूछते कि जो सब मेरा ऐप है क्या, जबकि पूरी प्लानिंग लाए उन्होंने 50 लाख रुपए ऐप को खर्चा लगता बोल के बताए सो वाले एप्लीकेशन की प्लानिंग रवि रेड्डी लाए, अपने रवि रेड्डी लेके आए। तो आप लोगों ने बाद में लेके आए। बहरहाल आप लोग नहीं लाए, समझो नहीं आप लेके लोगों को आए, इस चीज का इल्म नहीं था इस चीज का, उन्होंने लेके आए। फिर ऐप उन्होंने लेके आए, और लंदन की डिग्री है ना उनके पास, तो वो कर सकते हैं। तो अच्छी बात है साहब। तो ऐप लेके आए उन्होंने जी तो जब ऐप को अफोर्ड नहीं कर सके, ड्राइवर नहीं दे सकते बोल के मालूम है, जी, तो चलो ऐप को तो साइड में कर दो, लेकिन जो हालत चल रहा था पोर्टर में ड्राइवरों का, इन्हों आए थे कब, पोर्टर जब चल रहा था जब ही चाहे ना, आके जो है ड्राइवरों पे ये मुसीबत हो रही है, परेशानी हो रही, पोर्टर वाला जुर्म कर रहा बोल के आए, चलो ऐप लॉन्च करेंगे बोल के आए। ऐप में जो है पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सके थे ड्राइवर, हाँ, तो इन्हों क्या करे, नहीं कर सक रहे नहीं भाई, नहीं कर सक रहे नहीं जी। ड्राइवर यहाँ तक ये पोर्टर कंपनी से इतना बदजन और बेजार हो गया, क्योंकि पोर्टर तो गुंडा राज पे उतरेगा, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ से लेके अगर ऑल ओवर इंडिया देखेंगे आप, तो पोर्टर का गुंडा राज है, तो इसके खिलाफ उतरे थे। बेस्ट ड्राइवर यूनियन से बता रहा हूँ, वो लोग भी अपना कारोबार खड़ा लिए, वो लोग भी अपनी दुकान चला लिए। अब इनके ऊपर हाथ जोड़ के बोले कि हम भाई अब ड्राइवरों से विश्वास होगा, क्योंकि ड्राइवर वक्तिया देखने वाला है। आज हैदराबाद के जो लोग हैं बहुत भोले और मासूम है, तो इन्हों क्या बोले, नहीं ऐसा हिम्मत हारे तो नहीं होता बोल के आए, कोशिश करे, सब कुछ करे, करने के बाद क्या करे, अपना रुख चेंज कर दिए ना, मूवर की तरफ चले गए, मूवर के तरफ चले गए ना। तो मूवर से ना मेरे को पर्सनल कोई दुश्मनी है, ना पोर्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, किसी ऑनलाइन कंपनी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, ये होना चाहिए, ठीक है, मगर इनकी जो पॉलिसी है ना वो गलत है। अब ये पोर्टर के गलत पॉलिसियों की वजह से आज हैदराबाद के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप वाले अपना बिजनेस खड़ा कर लिए। पोर्टर के अंदर कस्टमर डाउन हो गया, ठीक है, आप थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ बात को, पोर्टर के अंदर कस्टमर डाउन हो गया, मगर कस्टमर ये कंपनी ये समझने को तैयार नहीं है। पोर्टर को एक ही फिक्र लगी है कि मेरा कस्टमर कहाँ है, कस्टमर को गाड़ी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रही, गाड़ी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रही।
जिस जगह पे हम जा रहे हैं भाई, मैं 2 घंटे से बुक कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से बुक कर रहा हूँ। अरे खुद मैं भी पोर्टर की ट्रिप उठाने को तैयार नहीं हूँ, मैं इसमें से तैयार। रेट कम है भाई, इतने रेट कम है कि वर्कआउट नहीं होता। वहां जाने के बाद कस्टमर हेड डाल दे रहा, वेट डाल दे रहा, ये डाल दे रहा। क्या यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना मेरा कोई मकसद है क्या? मेरा कोई बिजनेस है? बोलो, मैं एक ड्राइवर हूँ, ड्राइवर पेशा भी मेरा बना के चला रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं कैसा भी जी लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मगर इन लोगों की जो हुंडा राज है ना, ड्राइवर को बर्बाद करके रख डाले, इसके लिए मेरी आवाज उठा रहा हूँ, इतना बोलना चाह रहा तो फयाज भाई आप आवाज उठा रहे जी। तो ये भाई साहब भी अपने रवि रेड्डी जी। इन्हों भी आवाज उठाने के लिए ड्राइवरों की तकलीफ समझ के मार्केट में आए, अच्छा, यूनियन बनाने के इनसे पहले ये सवाल करता हूँ मैं, ये जो एक लिस्ट तैयार करे थे, कौन सी पूरा एडिट करके एक लिस्ट तैयार करे थे ना, जी 3 व्हीलर का ये पर किलोमीटर होना, ये बेस फेयर होना, टाटा इसका ये पर किलोमीटर ये बेस फेयर, 8 फीट का ये पर किलोमीटर ये बेस फेयर, 407 मतलब से जितनी गाड़ी है भाई मिनी ट्रक, सबका पर किलोमीटर बेस फेयर इन्होंने तैयार करके यहाँ तक कि ये बोले गाड़ी वालों को कि अपने आईने पे चिपका लो, बोले आज वो गायब हो गया वक्त के साथ। तो नहीं वो चीज उन्होंने मूवर में फॉलो करे होंगे ना भाई, हाँ? क्योंकि मूवर में 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे साहब। हाँ। मूवर कंपनी बता दो, बोलो भाई, उनके पास होंगी ना जो बनाए उन्होंने, जो एडिट करे हुए है, जो पर किलोमीटर 3 व्हीलर का उन्होंने बताए थे। अब ये जो डिस्टेंस जो बता रहे हैं, आप कुकटपल्ली से कहाँ का बुक करें? कुकटपल्ली पंजागुट्टा मेट्रो से पंजागुट्टा मेट्रो से लेके मियापुर मेट्रो स्टेशन तक, तो जो बता रहा, जो इनका डाटा था कलेक्ट करे हुआ कि इतना पर किलोमीटर होना हमारा, तो वो बता रहा है कि उसके अंदर आपको टैली कर लो, पब्लिक टैली कर ले। मैं किसके बारे में सफाई देना चाहता नहीं तो टैली कर लो, समझ में आता, आधा किराया भी नहीं बनता उसका। तो फयाज भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा है मूवर में। इनके बहुत से सपोर्टर है मूवर कंपनी के कि भाई पोर्टर से अच्छा है मूवर, 200 रुपए ज्यादा मिल रहे। अच्छा मिल रहे ना भाई, तो पोर्टर मूवर को सपोर्ट करो। पोर्टर भी एक टाइम पे हमारे को टी शर्ट दिया, समझ रहे आप, हाँ 4 मोबाइल चार्जर दिया, मोबाइल स्टैंड दिया, हाँ। बिठा के जूस पिलाया, सब कुछ करा। आज क्या कर रहा पोर्टर हमारे साथ? इसलिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे जो भी कंपनी हो, अब जो गलती हमारे से हो गई। अब जो भी कंपनी आएंगी, एक हमारी ऐसी यूनियन, एक ऐसी ताकत बनाओ। पहले ऑनलाइन कंपनी से अपना अग्रीमेंट होना चाहिए यूनियन से। अब इनोज कंपनी की बात करते हैं, इनोज जैसे कि कंपनी के जो एम्प्लॉई है, जो अथॉरिटी जिनकी जो इनको मिल गई, इन्हों वो भी बात करते, फिर उन्हें यूनियन बनाने की भी बात करते। तो भाई काम क्या करेंगे? तो सही बोले, ये करेंगे या वो करेंगे? मेरे को कंपनी से नहीं मिला। आप सबको भी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को जवाब मूवर कंपनी से नहीं मिला। मेरे को जवाब मिला मूवर कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉय, जो कि ड्राइवरों का भला सोचते। क्या बोलते हैं भाई? क्या ड्राइवरों का भला करने वाले कंपनी एप्लीकेशन के बारे में पब्लिक को समझा रहे हैं। तो ड्राइवरों का इसमें क्या भला? ये हमारी जमानी नहीं है भाई, खुद उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको, ठीक है? तो आप वो रिकॉर्डिंग में सुनो, आपको आगे चल के वो भी रिकॉर्डिंग देने वाले। वो रिकॉर्डिंग में ना भाई जवाब दे रहे, वो रिकॉर्डिंग के बाद फिर से हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो वो आप गौर से वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ये कंटिन्यू करो। भाई साहब उसमें अलग अलग बता रहे, पॉइंट की बात नहीं कर रहे, माइंड को चेंज कर दे रहे भाई साहब। डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे हैं ना। ड्राइवरों के साथ भी वैसे ही कर रहे, और जो है अपने ग्रुप के मेंबरों के साथ भी वैसे ही कर रहे। जो उनके ग्रुप में नए तो तरह के एलिगेशन, भाई ये बंदा हिंदू मुसलमान की बात करने वाला है, फला करने वाला है। जबकि नरेश अन्ना जो मेरे दोस्त है, आज से ने पिछले 7-8 साल से, जब से मैं ऑनलाइन की दुनिया को देखा, जब से मेरा दोस्ताना, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको पहचानता हूँ। आज तक हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है। मेरे घर उन्होंने आते हैं, उनके घर मैं जाता हूँ, सब फ्री मसला है। हम दोनों एक भाई की तरह, 2 धड़कन एक जान की तरह हम लोग रहते हैं। ऐसे लोगों में फूट डालने वाला काम करा बंदा है। जब इन्हों बोले, नरेश अन्ना मेरे को फोन करके बोले, फैयाज भाई आपके ऊपर ऐसा एलिगेशन है, आप अग्री है क्या इसको क्लियर करने के लिए? मैं बोला भाई नॉर्मल चैलेंज मैं नहीं करता, मैं एक ही चैलेंज करता हूँ। अगर ये बंदा प्रूफ दे दिया कि मैं ये कराया। कौन प्रूफ दिया? तो रवि रेड्डी। अच्छा, रवि रेड्डी अगर प्रूफ दे दिए कि भाई मैं हिंदू मुसलमान कराया, तो ग्रुप के जितने मेंबर है, 1200, 1300, 1400 जो भी मेंबर है, मेरे को एक मेंबर भी नहीं छोड़ना, पूरे मिलके मेरे पे FIR करना। तो अगर वो बंदा नहीं दे सका प्रूफ, तो बंदे के पर FIR होना। आज तक वो सवाल से भागे हुआ है बंदा। तो फयाज भाई ये जो वो हिंदू मुस्लिम की बात निकाले रवि रेड्डी साहब, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस हो सकता है उनके ऊपर, हो सकता, लेकिन खैर मसला नहीं। अरे भाई मैं तो मेरे ऊपर भी लेने को तैयार हूँ अगर मेरे से गलती होगी तो। सही बात है आपकी भी। जब हक की बात करो, रास्ता नहीं मिला, रास्ता समझ में नहीं आया, तो कुछ भी एक एलिगेशन सामने वाले पे। तो फयाज भाई ये जो आपके ऊपर एलिगेशन जो बंदा लगाया था कि आप हिंदू मुस्लिम करे बोलिए, ये आप मिलने से पहले लगाया ना? मिलने के बाद जब मैं सवाल जवाब करना शुरू करा। कितने दिन हो गया था मिलके? जब मीटिंग हो गई थी, मीटिंग यानी कि 6-7 महीने 8 महीने तक हो गया समझो। मीटिंग हो गई, बढ़ के होगा। तो इसका मतलब भाई कि फयाज भाई जब अपने रवि रेड्डी से मिले थे, तो फयाज भाई को जब हिंदू मुस्लिम जो है इन्हों नहीं करे थे, बाद में जब इन्हों मीटिंग करने के पहले बोले सब हम लंगोटी यार की तरह रहते थे भाई। हाँ। जब हम बेस्ट ड्राइवर यूनियन से थे, जैसा हमारे एक सुरेंद्र अन्ना बोल के है, और एक भाई उनका नाम मेरे को जहन में नहीं आ रहा, मुस्लिम के है, उनकी टाटा एस खराब हो गई, तो हमारे सुरेंद्र अन्ना 3 व्हीलर से खींच के लेके गए,
3 व्हीलर गाड़ी से 7 फीट खींच के लेके गए। ये मोहब्बत हमारी है, यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मेरी खुद की गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन हो गई तो मैंने जब ग्रुप में डाला तो एक बंदा आके मेरे को जो है 4-5 किलोमीटर से आके मेरे को हेल्प करा। ये हमारी यूनिटी थी। तो उसमें हिंदू मुस्लिम आज नहीं जुड़ा। आलम ये हो गया, कहीं का हिंदू कहीं का मुसलमान। भाई काटो तो हिंदू का खून अलग, मुसलमान का खून अलग तो है क्या? फिर इन्हों आपको हिंदू मुस्लिम का कहीं को बोले आप इनका पहले जवाब नहीं था ना साहब इनके तो पास। आप पहले नजर नहीं आया आपसे पहले मुलाकात के टाइम? नहीं समझ में आया। तो आप मुस्लिम है, आपको दाढ़ी है बोल के नजर नहीं आया? नजर बाद नहीं में जब आप हक और ईमान की बात कर रहे थे तो जब इनको तकलीफ हो गई, ड्राइवरों के फीचर में क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं बोल के सवाल करे तो मुझे हिंदू मुसलमान करने है, वाला हिंदू मुसलमान तो करे क्या थे ना, अंदाजा शॉर्ट में बोलिए जरा। एक ही बात बोले भाई, उसकी टोपी देखो, उसकी दाढ़ी देखो, तरह तरह की चीज समझ रहे आप। सलाम करने के अंदाज देखो, तो सलाम करने का जो मेरा तो अंदाज अब था वही अंदाज से। इसका प्रूफ कैसा कहाँ है, कौन बोल सकते अब हैं? उन्होंने देना वो। नहीं उन्होंने देना, उन्होंने एलिगेशन नहीं, उन्होंने ये जो बोले इसकी दाढ़ी देखो, इसका ये देखो, तो किसी बंदे के सामने बोले थे उन्होंने? किसी बंदे के सामने बोले थे, वो तो प्रूफ नहीं है, मगर एक इनकी कॉल रिकॉर्डिंग जरूर है जिसमें इन्होंने बोले थे कि मैं प्रूफ देता हूँ, अच्छा, मैं प्रूफ देता हूँ बोले थे। तो इसका मतलब उन्होंने प्रूफ देते बोले हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो। हाँ, आज तक वो प्रूफ नहीं दिया। तो कितने महीने हो उनका गया प्रूफ मेरे पास है, वो कॉल रिकॉर्ड उनका मेरे पास है कि उन्होंने जो वादा करे थे कि मैं प्रूफ देता हूँ बोल के, वो प्रूफ आज तक इन्होंने दिया। वो प्रूफ मेरे पास है, जो इल्जाम इन्होंने जो लगा रहे ना, वो प्रूफ मेरे पास है। कितने महीने हो गए इन्होंने एलिगेशन क्लियर नहीं करके अभी तक? इसका तो अंदाजा नहीं है साहब, क्योंकि मैं अपने काम में लगे हुआ हूँ थोड़ा, याद तो नहीं है, मगर ये है लगाए सो इन्होंने, कम से कम मैं समझता हूँ 7-8 महीने के करीब होगा। क्योंकि फयाज भाई, मैं ये सवाल करने का मकसद ये जी। है, अपने बहुत से जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उन लोग ये समझ रहे कि ये मैटर पर्सनल है, जी। लेकिन ये पर्सनल नहीं है, भाई, ये ये ग्रुप देखो, के अंदर की बात है, पूरे ड्राइवरों का जितने ग्रुप था। चेहरे उतने दिमाग, जितने दिमाग उतनी सोच। किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते, वो उनकी जाती सोच है, वो जो चाहे समझ ले, मगर जो हकीकत है वो सामने है, जो हकीकत है वो सामने है। अगर आप लोगों को दिख रहा है कि ये बनावट है, तो आप जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हो उनको लेके आ लो, दूध का दूध, पानी का पानी, खुली किताब। सही बात है, आप आओ ना भाई, फिर आगे फयाज भाई से मिलो। आप आगे फयाज भाई से मिल सकते, फयाज भाई से सवाल कर सकते, और अपने जो नरेश अन्ना है, नरेश अन्ना से भी आप बात कर सकते, भाई क्या है क्या नहीं, क्या मसला है, आप अलग क्यों हुए, निकले क्यों? भाई देखो, ये वीडियो बनाने का वाहिद मकसद यही है कि आप लोगों को जो ये बंदा, जो इसकी आप इससे पहले आवाज सुने थे, वो बंदा जो है ना, यूनिटी बनाता हूँ, एक ट्रेड यूनियन बनाता हूँ मुल्क, ये बंदा आया था मार्केट में, सब ड्राइवर भाइयों को रात रात में मिलके, उनसे नहीं मिला जिससे काम नहीं होता, उनसे मिला जिससे काम होता। जो बंदा टैलेंटेड है, जैसे कि फयाज भाई थे, नरेश अन्ना थे, बालराज अन्ना थे, इसाक भाई थे, और अपने क्या नाम उनका, सिराज भाई थे। भाई मैं 600 मेंबर ग्रुप के अंदर जोड़ा, 600 मेंबर को जोड़े 600 मेंबर में जोड़ा। जी। जोड़ने के बाद ये बंदा जब मैं बात करा तो भाई लेके आ लो आप 200 आदमी को, अगर तो मैं बात करूंगा, मैं तो टाइम दूंगा ना। तो जब मेरे से जब आए थे मिलने के लिए, तो अकेले आए थे मेरे से मिलने के लिए। कब आए थे? स्टार्टिंग में रात के टाइम आए थे। रात में क्या है भाई, ये मिलने का क्या तरीका है आपका, रात में मिलने का है? सुनो बात सुनो, टाइम खराब हो रहा। तो बोलने का मतलब क्या है, नो क्या बोले, आगे नहीं अपन करेंगे बोल के तनहा मेरे से मिले, तनहा नरेश अन्ना से मिले। अब जब इन्हों मिलने की बात कर रहे तो इतने बड़े मिनिस्टर हो गए साहब कि इनको इनसे मिलने के लिए 150-200 आदमी जमा करे तो इन्हों आते बात करने के। इसका मतलब भाई साहब जो है, पहले अपना काम करने से पहले इन्हों मासूम बताए अपने आप को, जैसा अपन थोड़ा पोजीशन पे आए, अरे रवि रेड्डी बोल के जब लोग करते गए तो अपने आप को मिनिस्टर समझ गए। इनसे अकेले नहीं मिलते, अब इन्हों मिलते भी नहीं, समझो कौन, रवि रेड्डी फयाज भाई से अच्छा, अकेले से नहीं मिलते। और एक रिकॉर्डिंग उनकी मैं डालता हूँ आपको, आप उसके अंदर राइट करो। उसमें ये बता रहे हो ना, किसी को अगर डाउट है तो मेरे को पर्सनल कॉल करो। मेरे खुद का 2-3 बार मैं उनको फोन करा, करने के बाद में आज तक फोन नहीं उठाया। ये कॉल हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो मिल जाती, कॉल हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो लास्ट कॉल उन्होंने मेरे को करे थे या मैं उनको करा था, आज तक उसका रिप्लाई नहीं है कुछ। मगर फोन करो बोलते हो ना, किसको शायद होंगे तोते करते होंगे, मिठुआ करते होंगे पर्सनल, तो पहले से प्लानिंग होती होंगी, कॉल रिकॉर्ड करो और ग्रुप में डालो। और इन्होंने बोलते हैं मैं तो खुला रिकॉर्ड कर लो बोल रहा हूँ, ग्रुप में डाल दो। तो भाई इन्होंने जो मेरे को सिखा है, हमारे रवि रेड्डी है ना, जो सिखा है वही बोलेंगे, जो पाले हुआ तोता आएगा वही रिकॉर्ड करके डालेंगे ना, मेरी रवि रेड्डी से बात हुई थी भाई, मेरी रवि रेड्डी से बात हुई थी, वो डालेंगे ना। तो इन्होंने खाली फूलते रहते बैठे जगह। भाई जो हकीकत है खुला में डाल दो, बोला मैं डरता हूँ नहीं। तो भाई ऐसे लोगों से बात करो जो सवाल करे, जैसा मैं हूँ, नरेश अन्ना है, सिराज भाई है, इसाक भाई है, जितने लोग हैं, सत्तार भाई है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इनसे मिलके आप बात करो, फिर ग्रुप में डालो बोलो आप, फिर वो सवालों को ग्रुप में डालो बोलो आप, जब आपको समझ में आता, ये पब्लिक को समझ में आता जब कि आप सच्चे हैं या हम सच्चे हैं। ठीक है भाई? तो भाई कितना की टाइम हो गया वो चीज करके, नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने समझ रहे आप जी। अब बहरहाल आपसे मुलाकात करके तो बहुत अच्छा दिखा, लेकिन मैं लास्ट थोड़ी देर आपका टाइम लेना चाह रहा हूँ, बस थोड़ी देर, कि भाई ये जो रवि रेड्डी के ऊपर जो अभी एलिगेशंस लगे हुए हैं वो अभी तक क्लियर हुए?
एलिगेशन रवि रेड्डी के ऊपर नहीं है साहब, एलिगेशन मेरे ऊपर है, नरेश अन्ना के ऊपर है। नहीं साहब, पब्लिक समझ रही है एलिगेशन रवि रेड्डी के ऊपर है। नहीं ऐसा समझ कैसे रही? होता है एलिगेशन रवि रेड्डी के उनके ऊपर? तोते बोल रहे भाई, मेरे को खुद उनका बंदा फोन करके टेलीग्राम से मेरे से बात करके ये बोल रहा कि आप लोग रवि रेड्डी को बुरा बोल रहे। भाई ये देखो, बंदा अच्छा है कहते। सुनो आप, या तो वो कोई नॉर्मल इंसान है जिसको मालूमात नहीं है, या तो उनका पाले बात होता है, सीधी सी बात, या तो उनका पाले बात होता है, इन्होंने छोड़ दिए कि भाई तुम फोन कर लो, फोन करके ऐसा ऐसा समझा दो, डरा दो, कर दो, जो भी है वो अलग मैटर है। मगर अगर कोई मासूम करा तो वो दोषी नहीं है, उसको सच्चाई जानने के अधिकार है। और सच्चाई क्या है, आके फेस टू फेस सामने दो, बोलो। जितने लोग ग्रुप के अंदर से निकले और अभी तुम्हारे ग्रुप के अंदर जितने हैं, तुम जितों को लेकर यूनिटी बनाना चाह रहे या अपनी कंपनी चलाना चाह रहे, तो कंपनी के सेठ बन गए शायद आप। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म पे लाके बात करो ना भाई। आप पहले आप क्या दिए थे प्रूफ, 500 आपकी रुपए, सोच क्या थी? 500 रुपए मांग रहे, फिलहाल बिजी है थोड़ा। 500 रुपए में यूनियन बनाने के लिए 500 होना, यानी कि भाई मेरे को जितना मालूम है यूनियन बनाने 7 आदमी होना, बोर्ड यूनियन मेंबर। बनाने 500 भी लेंगे ना, फिर कंपनी की डिटेल भी इन्वेस्ट देंगे। तो भाई कंपनी के फेवर में काम कर रहे हैं आप, ड्राइवर के फेवर में काम कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर मैं तो बोलता हूँ, अगर मैं बोलने बैठा तो 10 घंटे कम पड़ जाते। नहीं वो तो है, इसलिए मैं पॉइंट की बात आपसे करना चाह रहा हूँ। एक 5 मिनट दियो मेरे को, ऑलरेडी 25 मिनट का जो है ना वीडियो बन गई। पब्लिक को देखने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि नहीं इंटरेस्ट आता, क्योंकि ये फयाज भाई सो पब्लिक पहचानती है फयाज भाई कौन है। आगे चल के आपको दूसरे लोगों से भी मिलाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को भी मिलना है, बेफिक्र आप, अभी इनकी चैन शुरू हो गई समझो। वही अगर आप तक जो है पैंडल रुकी हुई थी, इन्होंने बहुत पर मार लिया। अभी जब ये साइकिल चलना शुरू हो जाएंगी ना, तो इनकी गेम खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपको भी किसी को भी मिलना है मेरे से, किसी को भी वीडियो बनाना है, अपने ताल्लुक से पर्सनल बोलना है, क्या है पर्सनल, यानी कि अपने साथ जो बीता, आप हक और ईमान पे थे, तो अगर आप मेरे साथ मिलके वीडियो बनाना चाह रहे तो टेलीग्राम से कांटेक्ट करिए। मैं आपको टाइम बोलूंगा, टेबल बोलूंगा। खैर यहाँ तो मेरे को फयाज भाई पकड़ लिए, मेरे को रोड पे मिल गए। मैं सुना था पहले से, बस ड्राइवर यूनियन से मेरे को मालूम है कि फयाज भाई जिसको पकड़ते, जिसका गिरेबान पकड़ते, उसके कपड़े पक्का उतारते। अगर उन्हें गलत है तो, अगर उन्हें सही है तो उसको अपने दिलो जान से इसकी सपोर्ट करते, आधी रात क्यों ना हो। तो वो हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। और एक फयाज भाई थोड़े सवाल करना चाहता हूँ मैं, माफी चाहता हूँ, आपको देर हो रही होंगी, मेरे को भी जाना है, लेकिन जरा आप थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए। और एक मैं सवाल क्या करना चाह रहा हूँ, अभी ये पोर्टर का 10 सेकंड का बटन नहीं गया, मैं पहले बोलता हूँ, सुनिए। पोर्टर का 10 सेकंड का डिले का बटन नहीं गया, ब्रांडिंग का इशू भी नहीं गया। हालांकि रवि रेड्डी साहब ब्रांडिंग के ऑफिस को गए थे, कहाँ पे, रानीगंज के पास। वो भी उन्होंने वीडियो ऐसी डाले थे, वहाँ पे जाते कि 5 मिनट में निकल जा रहा हूँ बोल के डाले वीडियो। बारे हाल वो क्या करेगी, अभी तक हैदराबाद डाल के किसको आना, आ जाओ पूरा हैदराबाद से 5 मिनट में आ जाओ, निकल जा रहा हूँ 5 मिनट। 5 मिनट तो आधा घंटा बहुत हाईलाइट हुई थी रिकॉर्डिंग में, बहुत जबरदस्त हाईलाइट चला था ना। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 10 सेकंड का डिले का बटन नहीं गया अभी तक, और ब्रांडिंग का प्रॉब्लम अभी तक नहीं गया। हालांकि पोर्टर कंपनी वो चीज को ले ली, अभी कंफर्म नहीं मालूम, पहली तारीख को फोटो डालो बोलती नहीं बोलती। अपने आधे ड्राइवर हम ब्रांडिंग रख के चला रहे, आधे ड्राइवर नहीं चला रहे, लेकिन कंपनी के पास हर ड्राइवर के 3.5, 4.5, 5.5 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पैसे रखे हुए। और एक चीज क्या है फयाज भाई, ड्राइवरों को आज हो रहा क्या, पोर्टर कंपनी जो जुल्म कर रही, अननेसेसरी सस्पेंड कर रही, सस्पेंड करने के बाद 5-5 हजार रुपए फाइन मांग रही अलग से। भाई देखो मैं बात बताऊँ जी, अगर आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी से मैं ट्रिप लिया, चाहे वो मूवर ले लो या अंकुल डिलीवरी, लाला मूवर, कोई भी कंपनी ले लो, अलग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो गुड्स हो या मूवर हो, नहीं, या चाहे गुड्स हो या कैब्स हाँ। कैब हो, तो बोलने का मतलब ये है जो ड्राइवरों पे पेनाल्टी लगा रहे। मिसाल के तौर पे मैं आपकी कंपनी से बुकिंग लिया, पिकअप पे या करीब चले गया, कस्टमर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब वो कंपनी तो वहाँ बैठी हुई एक ही बात बोलेंगे कि भाई ड्राइवर कैंसिल कर लेंगे, पर्सनल मान लिया, इसका कोई प्रूफ कंपनी के पास। आजकल जगह जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं, कई जगह तो ऐसे मजलूम ड्राइवर आके रो रहे हैं, ये बोल रहे भाई एक छोटी बुकिंग थी, 250-300 रुपए की ट्रिप थी, मैं लिया, वहाँ जाते कि बंदा कैंसिल कर दिया, कंपनी को फोन करे तो कंपनी वाले नो रिस्पांस, सर आपके ऊपर इश्यू नहीं आता बोल रहे हैं। कोई कंपनी वाले, कोई कस्टमर ड्राइवर की गलती लगा के कैंसिल कर दे रहे हैं, कोई कस्टमर क्या बता रहे, चेंज ऑफ माइंड बोल के बता रहे। उसके बावजूद अगर वो बंदा भाई देखो जब कैंसिल होगी तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर ठहरेगा, जब जाके ठहरा 1-2 दिन के बाद उसको सस्पेंड हो जा रहा, क्या बोलते हैं, ट्रिप तुम पर्सनल मान लिए, वोटर वाले पर्सनल मान लिए बोल के उसको 5-5 हजार रुपये पेनल्टी। जिस ड्राइवर को सस्पेंड करेगा उसको प्रूफ बताए, तू ये गाड़ी में यहाँ से माल डाल लेके निकला, ये टाइम तू पर्सनल मारा नहीं दे सके, 1 नंबर का चीटर है पोर्टर। वही खत्म, ये आने वाले कंपनियां भी उठा सकते हैं अपने साथ, जब तक अग्रीमेंट नहीं हुआ ये लोग भी जुल्म कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब बहुत लंबी कहानी है भाई, वीडियो तकरीबन 30 मिनट के ऊपर करीब चले गई।
तकलीफ मेरे को इस चीज़ की है कि आप लोगों के कान भी दर्द नहीं करना चाहता। अगर आप मेरे को सुनना पसंद करते तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दिन देने के लिए तैयार हूँ, एक दिन का एक महीना देने के लिए तैयार हूँ। खाली आपके कानों में ताकत हो ना, एक एक फुरू बाल से बारीक देने के लिए तैयार। ये जो कंपनी के जो फ्रॉड और इस तरीके के जो स्कैमर आते ना, स्कैम करने के वास्ते, जी नाम कौन है? चाहे वो पोर्टर बोल लो, जी इसका मैं बोलूंगा क्योंकि बगैर प्रूफ के लोग एक्शन ले रहे हैं। चाहे आप रवि रेड्डी बोल लो क्योंकि ड्राइवर की यूनिटी के लिए आके, और सीधी सी बात है बड़े भाई, क्योंकि इनका मकसद कुछ और था, अपनी यूनियन होना अपना। अरे हम तो चाह रहे भाई होना, चाहे ड्राइवर की बोल के नहीं, हर तबके की जो है, हर वर्कर की जो है एक यूनिटी होना चाहिए। नहीं तो तनहा बेचारे को मार देंगे, वो भी इंसान है, जीने के उसको अधिकार है, मगर जुल्म, तो उसके जुल्म की आवाज उठाने के लिए उनका एक सरपंच मतलब एक बड़ा होना चाहिए। तो ठीक, हम वही सोचे थे। तो ठीक है फयाज भाई, तो आप इसका मतलब आप आने वाले दिनों में भी मेरे से मुलाकात करके कभी वीडियो बनाएंगे कोई टॉपिक पे? बनाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अगर नहीं भी तो मैं बना के आपको दूंगा, आप खाली रिक्वेस्ट करो मेरे से। तो मैं एक चीज घंटों की देता हूँ, इनकी एक एक खबर खोदता हूँ। फराड को मैं कभी फराड, मैं वही इंसान में से हूँ। लिंक कंपनी में जब मैं करा था 3 बार मैं कंपनी को वापस करा, मेरा रिकॉर्ड है। जो पैसे बढ़ के आ गए वो वापस करा, क्योंकि मेरे लिए हराम है, क्योंकि मैं जिस पे मेहनत नहीं करा वो हराम है, वापस करा। मैं ऐसा नहीं करा कंपनी के ऊपर, मैं एक मतलब मेरी ईमानदारी बताना चाह रहा हूँ। उस टाइम भी एक आफ्टर पार्ट्स बोल के कंपनी आई थी, वो भी मतलब कुछ मुआवजा देने की बात करी, मैं हाथा उठा लिया। मैं बोला भाई ड्राइवरों की हाई बदवा का आज हम को देंगे, कल ड्राइवर को सतेंगे, उसकी बदवा किसको आएंगी? वैसे कंपनी में ड्राइवर को जोड़ेंगे कौन? हम बोले नहीं जोड़ सकते भाई ड्राइवर। अगर कोई ड्राइवर आएगा तो उससे पर्सनल आप अपने रूल्स कंडीशन, उसको कई सोल्यूशन दिए। यानी हमारी जो टीम थी उस वक्त बेस्ट ड्राइवर यूनियन की, जाके हम लोग 8-10 आदमी बैठ के सोल्यूशन दिए। बिरयानी खाओ पियो बोल के पैसे भी दिए हमारे को, समझ रहे। खैर वो बोले थे हम खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, वो हम खाली, वो हराम नहीं है, मगर जो ड्राइवरों को खाली ऐड करा बगैर एग्रीमेंट के, तो हम ऐड नहीं कराए ड्राइवरों को। हम बोले भाई नहीं, ड्राइवर को ऐड करना है तो पहले एग्रीमेंट, फिर जब उन्हें आएंगा ऐड कराने के लिए तो उसको जो है एक रिफरल अमाउंट, मिसाल के तौर पर हम 2 जने की बात करने कंपनी से, अगर वो बंदा आ गया आके ये बोला कि भाई हम वो बंदे को भेजें, अगर ये हम दोनों का नाम या 10 जने हम गए थे बात करने के लिए कंपनी से, वो 10 जनों में से किसी का भी नाम ले ले, डायरेक्ट वो बंदे को जो है 500 रुपये आप दे देना, क्योंकि बंदा डीजल खर्चा करके आपके पास आ रहा, गाड़ी अटैच करने, अपना कारोबार छोड़ के आ रहा आपके पास काम करने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास 2-3 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन में काम करने के लिए, फिर आपको कहीं को सपोर्ट करे भाई। आपको अगर प्लेटफॉर्म होना है तो कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता, खर्चा इसके लिए जो खर्च हो रहा ड्राइवर का, जो टाइम जो डीजल लगा के आपके पास आ रहा, उसका अमाउंट आपको देना पड़ेगा। कौन देना पड़ेगा? जो नई कंपनी मार्केट में कदम रखना चाह रही, तो कंपनी के पास उतना बजट नहीं था, तो हम आपके लिए हम कुछ कर देते। मैं तो बोला कि थूकता हूँ ऐसे पैसे पे, जो पैसे में इज्जत नहीं, वो इज्जत किस काम की? जीने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, इज्जत की जरूरत है। दौलत रख के आप फिरेंगे, सामने वाला देख के थूकेंगा, तो वो जिंदगी नहीं बोलते उसको। जिंदगी तो कुत्ता भी जी लेता भाई, तो वैसी जिंदगी नहीं होना। हम इंसान है तो हम इंसानों की तरह जीना सीखो, बस इतना बोलना चाहिए। ठीक है फयाज भाई, अब बहुत हो गया, मैं फयाज भाई को भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं आप थोड़ा मुख्तसर जवाब दीजिए, ज्यादा मत करिए। मैं ये भी चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये जो रवि रेड्डी अन्ना है अपने भाई साहब, हम सबके एक लीडर बन के आए, ऊपर वाला भगवान उनको, अल्लाह उनको हिदायत दे दे कि वो सबके अन्ना बने और अन्ना जैसा दर्द बताए। या तो कंपनी देखे या तो यूनियन देखे। अच्छा, तो या तो कंपनी या तो यूनियन। तो भाई मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, तो रवि रेड्डी साहब कंपनी देखना है या यूनियन देखना? क्योंकि बहुत से ड्राइवरों को ये मालूम हुआ कि मूवर कंपनी ड्राइवरों के साथ एग्रीमेंट करी, एग्रीमेंट ड्राइवरों के साथ नहीं करी साहब। वो जो एग्रीमेंट करी मूवर कंपनी, वो करी है मूवर कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉय यानी कि रवि रेड्डी के साथ करी है। क्योंकि मिले भी मूवर कंपनी से रवि रेड्डी जाके मिले किधर? दिल्ली में। ये ड्राइवर भाइयों को, ये अपने जो साथ दिए फयाज भाई, नरेश अन्ना, इसाक भाई, सिराज भाई, ये लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। आज मूवर कंपनी सिर्फ और सिर्फ रवि रेड्डी के साथ कनेक्शन में है, वो है दूसरे स्टेट की कंपनी। और एक बात फयाज भाई, हैदराबाद में ना 10 सेकंड का डिले का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ब्रांडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सस्पेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और एक आप इससे पहले शायद मेरा वीडियो देखे होंगे, बहादुरपुरे में एक ड्राइवर को चप्पलों का हार पीने, वो था गुड्स ड्राइवर यूनियन, वो गुड्स ड्राइवर का एक ड्राइवर था, अपनी जो नॉर्मल गाड़ी जो छोटे ट्रक की रहती। तो ये रवि रेड्डी साहब जो ड्राइवरों का भला करने है, इन्हों जाके नहीं पूछे। तो इसमें आपका क्या कहना है? ना इन्हों 10 सेकंड का सॉल्व करे, ना ब्रांडिंग सॉल्व करे। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, देखो भाई, अगर इन्हों सॉल्व करा देते तो फिर इनको कैसे जगह मिलती जी? इन्हों अपनी दुकान कैसे चलाते? तो इनको नाम सिर्फ एक ही लेना था कि पोर्टर के खिलाफ काम करना है, क्योंकि कंपनी पोर्टर बहुत फार्म पे थी जी। पोर्टर के खिलाफ इन्हों आवाज उठाए, पूरों को एक जगह जमा करे, उसके बाद अपनी गेम की जो माइंड है ना, इनकी जो माइंड की जो गेम है इनकी, वो लाके धीरे धीरे रखे, डायरेक्ट नहीं रखे। मुजफ्फर भाई को बुला लिए,
कि मुजफ्फर भाई आप मेरे खास आदमी हो, होटल में लग गए, बिरयानी खिला दी, वो भी हाई फाई होटल में। हाई-फाई होटल में बिरयानी खिलाते थे कहते साहब, और अपने आप में मेरे पास इतना पैसा है उतना पैसा है बोल के बताते थे कहते। अरे सुनो आप, अरे मेरे भाई एक बार ऑनलाइन में गाड़ी बुक करें ना जी, ऑनलाइन में गाड़ी बुक करके ड्राइवर को ये सोल्यूशन दिए, ऑनलाइन में तुम्हारे को बच रहा क्या, कर रहा क्या, तमाम तरह के सोल्यूशन देके उसको बेचारे को बिरयानी खिला के 4 पैसे बढ़ के देके ग्रुप में भी डाले। आज ड्राइवर की जिंदगी ऐसी हो गई, मेरे को नहीं देखा जा रहा बोलते। लेकिन उन्होंने आज भूल गए वो ड्राइवरों को, अपनी कंपनी चला रहे, जवाब कंपनी की तरफ से जवाब दे रहे हैं। यूनियन अभी बन रहा, इनका यूनियन अभी बन रहा, पता नहीं आगे चल के यूनियन बनने के बाद इन्हों भाई साहब क्या करते। लेकिन फैयाज भाई के पास, मेरे पास और भी बहुत से ड्राइवरों के पास सब प्रूफा है इन्हों किस तरीके से सबको निकाले, हक और ईमान की बात करने वालों पे निकाले। और एक बात मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं, कि भाई इन्हों जो भाई साहब है हमारे मूवर कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉय, इन्हों अभी यूनियन बना रहे, ड्राइवरों का कुछ भला नहीं कर रहे, और इन्हों ये सोच रहे कि पावर में आने के बाद ड्राइवरों का भला करेंगे, नहीं पावर में आने से पहले ड्राइवरों का भला करेंगे। और ये भी सोच रहे कि पावर में आने के बाद यूनिटी बनाएंगे, यानी कि यूनियन ग्रुप, ट्रेड यूनियन बनेंगे, या फिर पावर में आने से पहले बनेंगे। पहले तो भाई आप जो मकसद से आए थे वो चीज को आप पूरा करो। आप ड्राइवरों के सपोर्ट के लिए आए थे, ड्राइवरों का साथ देने के लिए आए थे। जितने भी लोग आप निकाले, जितने भी लोगों को ग्रुप में से, उनको आगे सवाल करो। फैयाज भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप जहां बोले जिधर बोले सब ग्रुपों के सामने आके जिस तरीके से कल मेरा वीडियो देख के आप रिएक्ट करें, आज भी आप ये वीडियो देख के आप रिएक्ट करो। फैयाज भाई को आप कांटेक्ट करो। अगर आप में दम है तो आप आज रात तक या फिर कल रात तक फैयाज भाई को फोन करना। आप भी रिकॉर्डिंग रखो, फैयाज भाई भी रिकॉर्डिंग रखते, आप कहाँ मिलते, किधर मिलते, क्या मुलाकात करते, आप मुलाकात करो। जितने भी लोगों पे आप एलिगेशन लगाए, मैं अकेला टाइम खराब करना नहीं चाह रहा जी। जितने लोग ग्रुप से निकले जी, और जितने निकाले गए जी, आज भी, जैसे कि मैं आपको बोला था, वो रिकॉर्डिंग आपको ऐड करना है, तो रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ ग्रुप से जी। तो सबके साथ इनका यही जवाब है। इनका पहला कॉन्सेप्ट क्या था और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बस खत्म हो गया बात। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई मैं रोका था मैं आपको टाइम देने के लिए, लेकिन मेरे को इतना अर्जेंट है कि मैं आपसे भाग रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, मेरे को अर्जेंट जाना है, क्योंकि मैं इंतजार किसी को कराना पसंद नहीं करता, सामने वाले को जबान दिया हुआ। अच्छी बात है, ठीक है साहब, फिर मुलाकात करेंगे। अभी फैयाज भाई तो जा रहे हैं, लेकिन मैं मेरा वीडियो कंटिन्यू करूंगा, आपको थोड़ा समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। बस शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया फैयाज भाई, आपका मिले बहुत बहुत। चलिए, अल्लाह हाफिज। दुआओं की दरखास्त, अच्छी बात है। बस जो करे, जब तक मर्द मुजाहिद बन गए ड्राइवरों के लिए। ठीक है, जैसे नरेश अन्ना हमारे आगे बढ़ते, शुरू से लेके आज तक बेचारे ना किसी के सामने बिके और ना बिकेंगे उनके ऊपर मेरे को उम्मीद है। या मेरे छोटे भाई समझो या मेरे बड़े भाई समझो, वो मेरे लगते जिगर है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है नरेश अन्ना। खाली नरेश अन्ना बोल के नहीं, बाकी सब भाई ऐसे है, मगर ये पूरों के माइंड को चेंज करने वाला ये वाहिद बंदा है। कौन है? रवि रेड्डी, जिसके दिलों में जहर, लोगों के दिलों में जहर, एक दूसरे को मतलब तू मैं कराना, अपनी दुकान चलाना, समझ रहा। जैसे कि मेरे को लिए, मेरे से 600 आदमी ऐड कर लिए, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, साइड में ढकल दिए, समझ रहे आप। अच्छा। सबके साथ यही करे सो इन्होंने, जब तक जरूरत है उसको इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद भाई आप रहना है तो हमारी सुनो, नहीं समझ में आप ग्रुप से क्या करना है, एग्जिट हो जाना है, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। బాలరాజ్ అయితే ఈ గ్రూప్ లోకి ఎగ్జిట్ అయిపో, లేదా రిమూవ్ చేసేస్తా. ఎప్పుడైతే నీకు ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ లో క్లారిటీ లేదో, ఏదంటే ఫోన్ లో మాట్లాడు. లేదు ఇట్లే చేస్తా అంటే, గ్రూప్ లో డిస్టర్బ్ చేస్తా అంటే గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి రిమూవ్ చేయబడుతుంది. సో నీకు స్వేచ్ఛ ఉంది, నువ్వు బయట వెళ్ళి ఏదైనా మాట్లాడుకో, ఈ గ్రూప్ లో డిస్టర్బ్ చేయకు. లేదు ఇట్లే గ్రూప్ ఉంటా అంటే మాత్రం ఈ టాపిక్ ని ఇట్లే ఆపకపోతే గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి రిమూవ్ చేసేస్తా. लतीफ भाई, आप बोलना क्या चाहते हो? अगर पोर्टर वाला रेट कम कर रहा है तो फिर आप पोर्टर को बाइकआउट क्यों नहीं कर रहे हो? आप कंप्लेंट सारा दिन कंप्लेंट करते हो कि मोवर में ट्रिप नहीं आता है। जब मोवर का रेट ज्यादा है तो ट्रिप नहीं आता है, और जब मोवर का रेट पोर्टर के बराबर करते हो तो मोवर में 20% 20 या 18% या 17% का कमीशन देने के लिए रेडी है, लेकिन 0% में काम करने के लिए भी आपको दिक्कत है। आप ये तो बोलो ना, कुछ बेहतर बोलो ना। कौन सी चीज, नया कंपनी है, ट्रस्ट मत करो, कुछ मत करो, तो फिर छोड़ दो ना। फिर पूरा नेगेटिव लेके रखते हो, कभी ना कभी पॉजिटिव से तो भी सोचो। और जिस बात की हम लोग एक क्वेश्चन ग्रुप बोल के बना है ना, उस ग्रुप में अभी तक एक सवाल भी क्यों नहीं कर रहे हो? जिम्मेदारी लेने के लिए, ना उठाने के लिए तो सामने आते हो, बस कीचड़ फेंकने के लिए सही हो। और अगर कुछ बोलेंगे तो ग्रुप से निकाल दिए, ये निकाल दिए, वो नहीं ले। आओ ना भाई सामने कुछ काम करने के लिए,
फोन करेंगे तो उठाते नहीं, मिलके काम करेंगे तो नहीं। सब आपकी मर्जी से चाहिए, रेट भी आपकी मर्जी, कमीशन भी आपकी मर्जी, काम भी आपका मर्जी, सब कुछ आपकी मर्जी, कमाई भी आपकी होनी चाहिए। अगले वाले का पूरा ठेंगा दिखाना चाहिए उसको। मेरे ड्राइवर भाइयों, फाइनल बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी इससे पहले जो रिकॉर्डिंग सुने ना आप, वो रिकॉर्डिंग में साफ साफ बंदा बोल रहा है कि 200 रुपए एक्स्ट्रा थे मूवर कंपनी में, अभी 200 रुपए कम हो गए, तो भी आप लोगों को तकलीफ है। आप लोग का जो है क्वेश्चन करने का एक ग्रुप है, वो ग्रुप में क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे बोल रहे। ये बंदा सबको अलग अलग बात कर रहा। भाई कितने की महीने हो गए, अभी तक ये बंदा जो है ना कोई सी भी चीज का जवाब किसी को भी नहीं दिया। अब जो ऊपर जो लिस्ट बनाया था पहले, वो लिस्ट की फोटो ये है। ये लिस्ट में ये जो अभी वीडियो जिसके साथ में बनाया, इनका नाम ही नहीं है उसमें, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिसका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। वो बंदा खाली जो है आप लोगों को अलग अलग फिल्मा सुना के, अलग अलग बात करके, अलग अलग जो है ना भटकाते रहता आपको। तो मेरा बोलने का मतलब कि ये बंदा मार्केट को पहले तो डैमेज थी और डैमेज कर दिया। तो ये बंदे को सिर्फ और सिर्फ मूवर के जरिए कमाना है भाई। मेरी बात तो यही है। क्यों बोले तो ये बंदा अगर ड्राइवरों के सपोर्ट में आया था, ड्राइवरों के सपोर्ट में सब काम करता हूँ बोल के बोलता, तो ये बंदा ऐसा नहीं करता था, मूवर कंपनी में जाके अटैच नहीं होता था। अब जो है 200 रुपये कम हुए, कितनी देर बोलो भाई मूवर कंपनी से परमिशन लेके 200 रुपये कम करने को। फिर ये इंश्योरेंस का भी नया फतवा निकाले लोग, नए टेंशन निकाले मूवर कंपनी वाले। तो देखो भाई, मेरा साफ साफ बोलने का मतलब, मैं कोई भी चीज आप लोगों को गलत नहीं बताया, आगे भी चल के कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताऊंगा। आप मेरे को मालूम है आप लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते, क्योंकि मैं कोई भी चीज गलत नहीं बताता, तो इसीलिए आप लोग अपना कीमती वक्त मुझे देते। आपका शुक्रिया। वीडियो बहुत बड़ी हो गई भाई, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन ये जरूरी था मेरे को वीडियो बनाना। कल जो सर्च बोल के जो टॉपिक चेंज करा बंदा, संडे रहता बोल के, सिर्फ 80 रुपीज का फर्क है। देखो भाई, कमीशन 0% है, हाँ ओके, लेकिन 200 रुपये कम कर दिया बंदा। क्यों कम करा? असल मार्केटिंग में पोर्टर से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इस वजह से बंदा क्या करा, पोर्टर में ऑर्डर्स मिलना बोल के ड्राइवरों को जो है ना एजुकेट करके, मूवर में ऑर्डर मिलना बोल के ड्राइवरों को एजुकेट करके जो है ना बंदा 200 रुपये कम करवाया मूवर कंपनी से। देखो भाई, ये बंदा ड्राइवरों के हक में आने के लिए जो है ना, ड्राइवरों को सपोर्ट करने के लिए बोल के आया था मार्केट में, लेकिन अब ये बंदा अपनी मार्केटिंग चला रहा, अपनी दुकान चला रहा। सिर्फ और सिर्फ ये बंदे का वाहिद मकसद यही है, मार्केट को डैमेज करना। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, हर किसी को मैं मिलके ना आपके सामने वीडियो लाके बताऊंगा। ये बंदा आज तक ये लोगों को कभी भी अपना जवाब नहीं दिया। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप जवाब दे, क्योंकि कल जो मेरा वीडियो देखे थे, वो वीडियो के बाद ये बंदा मेरे को कोई अलग अपना अकाउंट से मेरे को जवाब दिया, मेरे को समझा रहा 0% कमीशन है, ऐसा ऐसा है बोल के। देखो भाई, 0% कमीशन की बात छोड़ दो, 200 रुपये बंदा कम कर दिया। आप लोग समझो, मार्केट में और भी भोजन है बोले कि मार्केट में कॉम्पिटिटर आया तो होता। भाई आप लोगों को मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो मैटर हो रहा, ये पर्सनल मैटर नहीं है किसी का भी, ये सब ड्राइवर भाइयों का मैटर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही तो मर्जी आप मत देखो वीडियो को, समझ रहे, लेकिन ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है। और एक बात, बहुत से ड्राइवर भाई ये बोल रहे कि भाई आप जो है पोर्टर कंपनी को सपोर्ट कर रहे, मूवर को ऐसा कर रहे, मूवर को भी कंपटीशन में लाओ बोल रहे। भाई यहाँ पे मूवर को कंपटीशन में लाने की बात नहीं है, यहाँ कुछ अलग फिल्म चल रही, अलग खिचड़ी पक रही। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता, मार्केट को ये लोग बहुत डैमेज कर रहे हैं, मूवर कंपनी के ऑथोराइज एम्प्लॉइज। तो अगर आप लोग को समझना है तो आओ, मिलो, बात करेंगे, बैठ के समझाएंगे आपको क्या है क्या नहीं। पूरे प्रूफ है हमारे पास, ये बंदा कैसा है, क्या क्या करा, समझ। लेकिन आप लोग नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कोई भी चीज, तो आप बेकार के कमेंट मत करो, समझ रहे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो नहीं, अगर आप लोगों में हिम्मत है, खाली कमेंट कर रहे बस, आप लोगों में अगर हिम्मत है तो आके सामने बैठ के बात करो। आप लोगों को क्या है क्या नहीं सब समझाता हूँ। मैं कौन सी भी चीज गलत नहीं बताया, चाहे तो आप जाके चेक कर लो। ये बंदा रेट बरोबर कर दिया, समझ रहे। 20, 80, 100 रुपए का कोई फर्क का मतलब नहीं है, समझ रहे आपको। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जिसको भी मिलना है मेरे से टेलीग्राम चैनल से कांटेक्ट करो। मैं आप सबके साथ मिलके आपका जो प्रॉब्लम है सब दुनिया वालों तक पहुंचाऊंगा। पोर्टर कंपनी के खिलाफ रहो या मूवर कंपनी के खिलाफ रहो या अंकल डिलीवरी के खिलाफ रहो, जो भी गलत काम करेंगे उसके पीछे तो मैं हूं। और जिसको भी मेरे साथ मिलके वीडियो बनाना है, आप अपना जो अपना हाल है, अपने आप बीती सुनाना है, आप मेरे साथ मिलके वीडियो बना सकते। इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर आपके साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना भाई। आगे और भी देखो, बहुत से प्रूफ है, बहुत से वीडियोस आने वाले। अगर ये लोग गलत काम करेंगे तो इन लोगों के बराबर मैं प्रूफ लाके दूंगा आपके सामने। आओ बोलो, अपने ऊपर जो लगे गए वो एलिगेशंस को दूर करवाओ, क्योंकि ये लोग
दूसरों को हिंदू मुसलमान बोल के जो है ना मैटर खराब कर रहे। बहुत से अभी फिलहाल बालराज बोल के एक बंदा है, उसको निकाल दिए बेवजह, उन्हें खाली सवाल करा तो उसको निकाल दिए।